آج ویو 360 میں امریکہ میں صدارتی انتخاب کا دن، کیا وائٹ ہاؤس کا مکین بدلے گا یا نہیں؟ پہلی بار ووٹ کا حق ملنے والے جنوبی ایشیائی ووٹرز کے لیے یہ استحقاق کیا معنی رکھتا ہے؟ مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ اور نیو یارک کے لٹل پاکستان سے امریکی الیکشنز پر تازہ ترین۔ آج ہونے والے امریکی انتخابات میں اب تک 2016 کے انتخابات کے کل ڈالے گئے ووٹوں کا تقریباً 73% ارلی ووٹنگ میں کاسٹ ہو چکے۔ ماہرین کے خیال میں یہ ایک تاریخی الیکشن ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آج امریکہ کے 59ویں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یا تو صدر ٹرمپ اور مائک پینس ہی اگلے 4 سالوں کے لیے دوبارہ منتخب ہوں گے، یا جو بائیڈن اور کملا ہیرس کی شکل میں نیا صدر اور نائب صدر منتخب ہوگا۔ اس الیکشن کی ٹائمنگ کو کئی وجوہات کی بنا پر ایک تاریخی موقع کہا جا رہا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں ان انتخابات کا کورونا جیسی عالمی وبا کے دوران منعقد ہونا ہے۔ اس سال ووٹ ڈالنے کے اہل امریکیوں کی تعداد تقریباً 24 کروڑ ہے، اور امریکی ادارہ شماریات کے مطابق 2020 کے صدارتی انتخابات کے لیے امریکہ میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تقریباً 15.25 کروڑ ہے، جن میں سے کل تک کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو لگ بھگ 9 کروڑ 97 لاکھ سے زائد ارلی ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال بھی چکے۔ انہی نمبرز کی بنیاد پر ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ امریکی انتخابات اپنے ووٹر ٹرن آؤٹ کے لحاظ سے امریکہ کی 100 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن ہوگا۔ واشنگٹن سے ملحقہ ریاست ورجینیا میں امریکہ کے مشرقی کنارے پر موجود دوسری ریاستوں کی طرح ووٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ نیلوفر مغل ورجینیا کی آرلنگٹن کاؤنٹی میں موجود ہیں اور وہاں کی سینٹرل لائبریری سے ہمیں جوائن کریں گی، جبکہ ندیم یعقوب وائٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہیں اور صدر ٹرمپ کا انتخابی ہیڈ کوارٹر بھی وائٹ ہاؤس ہی ہے، وہ ہمیں وہاں سے جوائن کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں نیلوفر مغل کے پاس۔ نیلوفر، ووٹنگ کے آغاز میں اس وقت کیا مناظر ہیں پولنگ سینٹرز کے؟ جی اسد، بالکل، میں اس وقت جہاں پر موجود ہوں یہ واشنگٹن ڈی سی سے ملحقہ علاقہ ہے۔ ووٹنگ جو ہے صبح 6 بجے شروع ہوئی اور شام کے 7 بجے یہ یہاں پر جاری رہے گی۔ جو الیکشن کمیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ماسک اور سماجی فاصلے کی ہدایات جو ہیں انہوں نے جاری کی ہیں۔ ابھی 2 ہی گھنٹے بھی نہیں گزرے لیکن یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے اندر پہنچ چکی ہے اور ووٹنگ وہ ڈال رہے ہیں۔ ووٹ کے لیے انہوں نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ کم از کم 4 سے 5 لوگ وہ اندر جائیں گے۔ جب وہ ووٹنگ دے کر باہر آئیں گے تو اندر سینیٹائز کیا جائے گا، اس کے بعد مزید گروپ جو ہے وہ اندر جا سکے گا۔ اسد، آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ورجینیا کا شمار ان ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں پر ارلی ووٹنگ کافی بڑی تعداد میں جن کے نتائج جو ہے یا ان کی جو تعداد جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ورجینیا میں اس وقت 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور اس کے علاوہ جو 27 لاکھ لوگ ہیں وہ یہاں پر ووٹ ڈال چکے ہیں۔ ایک اور بات جو یہاں میری صبح الیکشن کمیشن کے جو ڈپارٹمنٹ کے اہلکار ہیں ان سے ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سماجی فاصلے کی ہدایات ہے، ماسک پہننے کی بھی ہدایات ہے، لیکن اگر کوئی ووٹر جو ہے ماسک نہ پہننا چاہے تو اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے آپشن دیا جائے گا کہ وہ پولنگ اسٹیشن سے باہر رہ کر وہ ووٹ کاسٹ کر سکے۔ جی ندیم، آپ کی طرف کیا صورتحال ہے؟ صدر ٹرمپ کی الیکشن ڈے سے پہلے کل رات تک کیا مصروفیات تھیں کیمپین کے حوالے سے، اور آج وائٹ ہاؤس میں کیا مناظر ہیں؟ کیا صدر کا کوئی آج کا اسکیڈول سامنے آیا ہے؟ اسد، جس طرح کے پچھلے چند روز میں ہو چکا ہے، سر ٹرمپ ان ریاستوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جنہیں بیٹل گراؤنڈ یا سپنگ اسٹیٹس کہا جا رہا ہے، جیسے اوہایو، وسکانسن، میشیگن۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں پر سر ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار وزٹ کر چکے ہیں۔ پینسلوینیا ایسی ریاست ہے جہاں پر دونوں رہنما جو ہیں وہ اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ تازہ جو اعداد و شمار ہیں، پولس کے جو جائزے ہیں ان کے مطابق نیشنل سطح پر جو بائیڈن کو اپنے مد مقابل پر تقریباً 10 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے، لیکن جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں ان میں مشیگن، پینسلوینیا، فلوریڈا، وسکانسن، وہاں پر جو بائیڈن کی جو این بی سی اور وال اسٹریٹ کے پولز ہیں ان کے مطابق ان کو برتری حاصل ہے، جبکہ نارتھ کیرولائنا، اوہایو اور ٹیکسس میں سر ٹرمپ جو ہیں وہ کچھ نمبرز کی ان کو برتری حاصل ہے۔
जितनी तादाद में आपने बताया वोट्स डल चुके हैं अब तक, और आज का दिन जो है उसमें जितने वोट्स डलेंगे, तज्जियाकार यहाँ पर कह रहे हैं कि शायद जो नया मकीन होगा वाइट हाउस का, उसका फैसला होने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे, कुछ रोज़, ये भी हो सकता है कि शायद हफ्ता या 2 हफ्ते हमें इंतज़ार करना पड़े। जी असद। बहुत शुक्रिया नदीम, बहुत शुक्रिया नीलोफर आपका। आपने हमें इलेक्शन के, इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, उसके जब इलेक्शन के शुरू हुए हैं वोट्स डालना, तो आपने वहाँ से हमें अपडेट किया। सदर ट्रंप के हेडक्वार्टर्स पे नदीम मौजूद थे, वो भी हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम उसका जायज़ा लेते हैं तो सदर बनने के लिए सिर्फ जो वोट दरकार हैं वही काफ़ी नहीं है। अगर पॉपुलर वोट की हम बात करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज है, उसको भी डिसाइड करना ज़रूरी है। इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट्स चाहिए होते हैं किसी भी उम्मीदवार को कामयाब होने के लिए 538 इलेक्टोरल कॉलेज के नुमाइंदों या इलेक्टर्स के वोटों में से। 270 वोटर जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट्स की बेसिस पे सदर मुंतखब होता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज है क्या, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जो उम्मीदवार ज्यादा वोट हासिल करता है वही जीतता है, ठीक है ना? मगर अमेरिका के सदारती इंतखाब में ऐसा नहीं होता। सदर और नायब सदर अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं होते, बल्कि उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज के अमल के जरिए इलेक्टर्स मुंतखब करते हैं। इस अमल को आईनी हैसियत हासिल है। हर रियासत को उसके कांग्रेस यानी सेनेट और हाउस में मौजूद अराकीन की तादाद के बराबर इलेक्टर्स मिलते हैं। 48 रियासतों में जो उम्मीदवार ज्यादा अवामी वोट हासिल करता है, इलेक्टोरल कॉलेज के तमाम वोट उसे हासिल हो जाते हैं। बाकी 2 रियासतों में डलने वाले वोट के तनासुब से इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स को तकसीम किया जाता है। जीतने के लिए उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होती है। सन 2000, 2016 और 19वीं सदी में 3 मरतबा इंतखाबात में उम्मीदवार अवामी वोट से तो हार गए, मगर इलेक्टोरल कॉलेज से जीत गए। सियासियत तज्जियाकार हों, कौमी सलामती के अहदेदार हों या और माहिरीन हों, उनकी राय में अमेरिका को दरपेश अंदरूनी मसाइल और आलमी इशूज़ पर अमेरिका के असरअंदाज होने की अहमियत के एतबार से 2020 के ये अमरीकी सदारती इंतखाबात अमरीकी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात में से एक हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान ने चंद ऐसे जनूबी एशियाई वोटर्स से जो 2020 के इस सदारती इलेक्शन में पहली बार वोट डाल रहे हैं, ये जानने की कोशिश की कि उनके लिए अपने हक राय दही का इस्तेमाल कितना अहम है और वो अपने वोट का फैसला किन इश्यूज़ की बुनियाद पर कर रहे हैं। आइए देखते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक सन 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में 2 करोड़ 30 लाख से जायद तारकीन वतन वोट डालने के अहल हैं। ये कुल अमरीकी वोटर्स का लगभग 10% बनता है, जो कि एक तारीखी तादाद है। वोट डालने के अहल इन तारकीन वतन अमरीकियों की अक्सरियत हिस्पैनिक और एशिया से ताल्लुक़ रखने वालों की है। इन्हीं वोटर्स में जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे वोटर्स भी शामिल हैं जो अमरीकी जमहूरी निज़ाम में पहली बार अपनी आवाज़ शामिल कर रहे हैं। यूएस सिटीज़न मैंने पूरी कोशिश की है कि अपना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको फुलफिल करूं, क्योंकि अमेरिका को डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, उनको यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। मिसबाहुद्दीन अशरफ को अमेरिका में रहते हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन इस मुल्क की शहरियत और वोट डालने का हक उन्हें एक तवील इंतजार के बाद हासिल हुआ। बहुत अच्छा लगा था और एक सुकून भी मिला कि भाई हर आदमी के पास एक राइट मौजूद है जिसको वो एक्सप्रेस कर सकता है, और ये लीडर्स के लिए एक मैसेज भी छोड़ता है कि भाई आपको लोगों का ख्याल करना पड़ेगा। जब मारिया अशरफ भारतीय शहरी की हैसियत से वोट डालने की उम्र को पहुंची तो वो अमेरिका में पढ़ रही थी। यूं ये मारिया अशरफ की ज़िंदगी का किसी भी सियासी निज़ाम में पहला वोट है और वो इसे एक प्रिविलेज यानी इस्तेकाक मानती हैं। यहाँ पे वोट देने आई, मैं अपने घर से निकली, हाँ हालांकि मैंने अपने घर की आरामदेह चीज़ों को छोड़ के निकली, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। कितने लोगों का खून बहा है इसके पीछे। एक क्राइसिस चल रही है पूरे वर्ल्ड में राइट लीडर्स की, एंड दिस इज़ द टाइम कि हम बाहर निकले और हम राइट वोट करें, अच्छे लीडर सेलेक्ट करें जिनके अंदर ह्यूमैनिटी हो। अमेरिका में शहरियत का इस्तेकाक हासिल करने वाले ये नए अमरीकी शहरी अपने आबाई मुल्क के इंतखाबी निज़ाम और अमरीकी इलेक्शंस में क्या मुख्तलिफ पाते हैं? पाकिस्तान में जब हम अमूमन वोट डालते हैं तो हम
ज़बान की बुनियाद पे अपनी पार्टी पसंदीदा की बुनियाद पे वोट डालते हैं। हम ये इसको नहीं सोचते कि वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये हमारे मसाइल को कितना हल करेगा। जबकि अमेरिका में जब मैंने वोट कास्ट किया है रिसर्च करने के बाद कि वो ये हमारे मसाइल का हल जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में पहले भी काफ़ी रफ़ पॉलिटिकल सिस्टम था, वहाँ पे भी यानी कि कभी कभार आप वोट करिए, काउंट होगा कि नहीं होगा, उसमें भी धांधली वगैरह भी हो जाती थी। लेकिन अमेरिका में आज तक इस तरह का कभी हमने सुना नहीं। लेकिन एक डर तो ज़रूर है कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन पूरे वोट कास्ट होते हैं पूरे पाकिस्तान में, जबकि अमेरिका में इसमें आपको अपनी सहूलत के मुताबिक बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक का पस मंज़र रखने वाले इन नए अमरीकी वोटर्स का माजी का तजर्बा मुख्तलिफ सही, लेकिन इनमें एक अज़्म मुश्तरक है, और वो है इमिग्रेशन, सेहत, तालीम और मईशत जैसे अहम इशूज़ पर अपनी आवाज़ को दुनिया की अहम तरीन जमहूरियतों में से एक इस मुल्क के इंतखाबी अमल का हिस्सा बनाना। सबा शाखान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया। और अब चलते हैं अमेरिकी रियासत डेलावेयर, जहां असद हसन मौजूद हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का इलेक्शन हेडक्वार्टर कवर कर रहे हैं। इस वक्त कैसा इस वक्त जोशो खरोश पाया जा रहा है और डेमोक्रेट्स क्या समझ रहे हैं कि उनकी मेहनत उनकी किस हद तक मर्जी के नताइज ला सकती है। जानते हैं असद से। असद, क्या सिचुएशन है वहाँ पे आपके पास, और इस वक्त अगर हम देख रहे हैं इंतखाबी हेडक्वार्टर्स में डेमोक्रेट्स के, तो क्या जो बाइडन आज को पब्लिक अपीयरेंस भी दे रहे हैं, किस तरह की गहमा गहमी है हेडक्वार्टर्स पे? बहुत शुक्रिया असद। अभी तो ये अर्ली मॉर्निंग है, हम कोई बहुत ज़्यादा जोशो खरोश इर्द गिर्द नहीं देख सकते हैं, लेकिन गुज़श्ता शाम जब यहाँ पे हम पहुँचे सो लोग काफ़ी खुश थे, एक्साइटेड थे कि जो बाइडन ने इस बार भी विल्मिंगटन डेलावेयर को अपना हेडक्वार्टर बनाया है, क्योंकि पिछले अगस्त में जब उन्होंने बाकायदा तौर पर नॉमिनेशन कबूल की थी डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से, यही वो वेन्यू था जो मेरे बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने खड़े होकर ये नॉमिनेशन एक्सेप्ट की थी ऑफिशियली। और आज भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन तवक्को की जा रही है कि किसी भी वक्त वो अपनी रनिंग मेट वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कैमला हैरिस के साथ और अपनी शरीक हयात के साथ डॉक्टर जिल के साथ अपीयरेंस देंगे लोगों के सामने। और ऑफ कोर्स इस वक्त जो है वो शहर के अंदर हम बात करें, मैंने बिज़नेस कम्युनिटी में कुछ लोगों से गुफ्तगू की है, वो इस बात पे खुश हैं कि यहाँ पे कुछ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ वो जनरेट हो रही हैं। विल्मिंगटन का शुमार अमेरिका के उन शहरों में होता है जहाँ पे ज़्यादा कहना चाहिए कि डेवलपमेंट नहीं है, पर स्टूडेंट अगर स्पेंडिंग की या अखराजात की बात करें, एजुकेशन की बात करें और इसी तरह हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो सूरत हाल कोई ज़्यादा आइडियल नहीं है। पॉवर्टी रेशो वो भी यहाँ पे सिवाय 2 रियासतों के सबसे ज़्यादा है, 12 से 13% के दरमियान जो है वो पॉवर्टी रेशो है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि एक इसमें सिम्बॉलिक मैसेज ये भी देना मकसूद था कि उनका फोकस इन इशूज़ के ऊपर है, और ऑफ कोर्स अपनी उनकी एक आबाई रियासत है, वहाँ पे उनका होना ज़रूरी वो ख्याल करते थे। सो पोलिंग यहाँ पे भी शुरू हो चुकी है, जैसे मेरे पहले कुलीग्स आपको बता रहे थे। पोलिंग का टाइम हर स्टेट में निस्बतन मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो है वो 7 बजे, जैसे वाशिंगटन डीसी में 6 बजे, तो यहाँ पे 7 बजे पोलिंग शुरू होगी और पोलिंग का अख्ताम होगा 8 बजे। सो 70,000 के करीब टोटल आबादी है। ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे वोट डाल चुके हैं, और ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वाले से वहाँ पे जो हुकाम है उनसे बात हुई, किसी इलेक्शन कमीशन के किसी आपको नुमाइंदे से बात हुई जिनसे आपको ये पता चला हो कि अर्ली वोटिंग अब तक, आपने कहा कि 70,000 की आबादी है वहाँ पे, तो कितने अर्ली वोट्स कास्ट हुए हैं और कितने वोट आज कास्ट होंगे वहाँ पे? असद हसन शायद सुन नहीं पा रहे, हम आगे बढ़ेंगे। जहां इस वक्त हम देखते हैं कुछ जो सिचुएशन बन रही है, कुछ रियासतों में रिपब्लिकन्स और कुछ रियासतों में डेमोक्रेट्स सदारती उम्मीदवार जो हैं उनकी जीत यकीनी होती है। वहीं कई अमरीकी रियासतें ऐसी भी हैं जहां इलेक्शन के नतीजे से पहले अगर हम बात करते हैं तो दोनों में से किसी भी उम्मीदवार की जीत का इम्कान वाज़ेह नहीं होता है। असद हसन हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त अर्ली वोट्स की, और इसके अलावा कितने वोट्स हैं जो आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वहाँ पे कास्ट होंगे। जी असद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या सिचुएशन है अर्ली वोट्स की और आज कितने वोट डाले जा सकते हैं? असद, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
नाज़रीन वापस बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम की तरफ, और जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन हम बात कर रहे थे कि जहां पे रिवायती तौर पे जो कुछ रियासतें हैं उनमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो हैं उनके उम्मीदवार जो हैं उनकी जीत जो है वो यकीनी होती है। ब्लू स्टेट्स कहा जाता है या रेड स्टेट्स कहा जाता है, लेकिन कुछ पर्पल स्टेट्स या ऐसी स्टेट्स भी हैं जो कि टॉस अप होती हैं या बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहलाती हैं, जहां पे किसी भी उम्मीदवार की जीत का इम्कान वाज़े नहीं होता। इन रियासतों को बैटल ग्राउंड या स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। 2020 के सदारती इंतखाबी मार्के में भी कई रियासतों को बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जा रहा है। इनमें पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन, फ्लोरिडा, ओहायो और मिशिगन नुमाया रियासतें हैं। अवामी राय के अगर जायज़ों की हम बात करते हैं तो इन रियासतों में दोनों उम्मीदवारों के बीच इंतहाई सख्त मुकाबला है। ऐसी ही एक रियासत मिशिगन है जहां गुज़िश्ता इंतखाब में सदर ट्रंप ने सख्त मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की थी। रियासत मिशिगन के सबसे बड़े शहर डेट्रॉइट से हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब बोरका। उनसे जानते हैं कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। आफ्ताब, दोनों पार्टीज़ के उम्मीदवार ने जो अब तक दोनों उम्मीदवारों ने रियासत मिशिगन के कई दौरे किए हैं, इससे ये तो वाज़ेह होता है कि अमरीकी सदारत जीतने के लिए इनकी स्ट्रेटजी में मिशिगन काफ़ी अहम है। तो क्यों अहम है ये रियासत दोनों उम्मीदवारों के लिए, और किस तरह वो यहाँ के वोट जीतने की कोशिश कर रहे हैं? जी असद, जैसा कि आपने बताया और बाकी साथियों ने भी पहले बताया कि मिशिगन वो स्टेट है जो अमेरिका की इस वक्त स्विंग रियासतों में या टॉसअप रियासतों में तस्वुर की जाती है। पिछली बार 2016 में सदर ट्रंप ने इस रियासत को जीता था बहुत ही क्लोज मार्जिन से, और उससे पहले बराक ओबामा इस रियासत को जीत चुके थे अपने इलेक्शन के हवाले से। तो इस हिसाब से इस बार जो है काफ़ी नज़र है इस स्टेट पर, और यहाँ के 16 इलेक्टोर्स हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज में जाएंगे। तो इन 16 इलेक्टोर्स को जीतने के लिए ये सारी दौड़ जारी है, और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बैटल ग्राउंड है कि सदर ट्रंप कल रात को ही यहाँ तकरीबन अपनी आखिरी रैलियों में से एक रैली करके गए हैं, और यहाँ पर जो मैसेज है उनकी तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से, वो प्रीटी मच जो नेशनल मैसेज है। स्पेशली इस बात की इंपॉर्टेंस भी है कि यहाँ की जो गवर्नर है ग्रेचन विटमर, वो डेमोक्रेट हैं, और उनकी और सदर ट्रंप के दरमियान क्लैश जो है वक्तन फवक्तन चलती रही है। उस हवाले से जब मैंने वोटर से मालूम किया कि उनका क्या, वो किस तरह से एंथुजियाज्म देखते हैं मिशिगन में वोटिंग के हवाले से, तो उन्होंने मुझे ये बताया। देखते हैं हम उनके क्या कहना था उनका। इस बात को देखते हुए कि मिशिगन में इस बार इंतखाबी मुकाबला इंतहाई सख्त है, मुसलमानों का वोट अहम किरदार अदा करेगा। कम्युनिटी का हर शख्स महसूस कर रहा है कि इस इलेक्शन में मुस्लिम वोट से फर्क पड़ेगा। इससे कतई नज़र कि कौन ये इंतखाब जीतेगा, मुस्लिम कम्युनिटी में हर तरह की सोच रखने वाले मौजूद हैं, लेकिन सब महसूस कर रहे हैं कि इस बार उनका वोट अहम है। Young people are getting involved and a lot of people are just नौजवान ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं। पूरे शहर ही में आप लोगों को इकट्ठे होता और रैलीज मुनक्किद करते देख रहे हैं। मैंने पहले के मुकाबले में लोगों को अपने उम्मीदवारों के लिए ज्यादा जोश में देखा है। I think people have a stereotype about मेरा ख्याल है अमेरिका और डेट्रॉइट के बारे में एक दकियानूसी सोच मौजूद है जो हमारे ज़बरदस्त तनव्वो की अक्कास नहीं। इसलिए ये मुसलमानों, हिंदुओं और यहाँ पर ही एक बुद्धिस्ट इबादतगाह मौजूद है। तो ये हम सब कम्युनिटीज़ के लिए अहम है कि हम वोट डालें, क्योंकि ये ही वो चीज़ है जो हमारी जमहूरियत का हुस्न है। You know, all of our communities to get out and vote. That's what makes American democracy vibrant. तो असर देखा, जैसा कि आपने देखा कि आज के इलेक्शन के बाद कोई भी उम्मीदवार जीतता है, एक बात तो तय है कि यहाँ के वोटर्स में जो एंथुजियाज्म इस बार पाया जाता है वो पहले के मुकाबले में नहीं है। और बाकी जो रियासतों की तरह यहाँ पे भी अर्ली वोटिंग का रुझान काफ़ी है। मैं पिछले दिनों में 1-2 पोलिंग स्टेशन जो अर्ली वोटिंग सेंटर्स है वहाँ पर गया था। लंबी कतारें आपको नजर आई। कुछ केसेस में लोगों ने घंटों तक इंतजार करके अपने जो है वोट कास्ट किए हैं। आज भी इस पोलिंग स्टेशन में जब मैं सुबह आया तो 7 बजे यहाँ वोटिंग का टाइम था। वोटिंग खुलने से पहले एक लंबी कतार थी, तकरीबन कम से कम 100 से लोग मैं देख सकता था कि उससे वोटिंग से पहले वहाँ पे खड़े थे। तो ये बात तो तय है कि यहाँ पर एंथुजियाज्म काफ़ी बहुत है लोगों में। और इस बार फॉर ऑल द रीजन जो हमने देखे कि जो इलेक्शन जो है यहाँ की रेस काफ़ी टाइट है बाकी स्टेट्स की तरह। तो अब तक कितनी देर तक वोट डाला जा सकता है आपके पास? वहाँ 7 बजे आपने कहा शुरू हो रहा है, क्योंकि डीसी में 6 बजे तक है, कुछ और रियासतों में 7 बजे तक है। तो कितने बजे तक टाइमिंग्स हैं वोट के? जी, मिशिगन में वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक जो है वोटिंग जारी रहेगी आज। बहुत शुक्रिया आफ्ताब हमें अपडेट करने का मिशिगन से। अब चलते हैं नाज़रीन न्यूयॉर्क के शहर ब्रुकलिन के इलाके में मौजूद जो कूनी आइलैंड है, लिटिल पाकिस्तान भी कहलाता है,
اور اس کی وجہ سے یہاں رہنے والے آف کورس پاکستانیوں کی اکثریت ہے. انشمن آپٹے لٹل پاکستان کے ایک پولنگ اسٹیشن سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت نیو یارک میں کیا سچویشن ہے. انشمن, کتنا جوش و خروش ہے پولنگ اسٹیشن پر جس پہ آپ موجود ہیں؟ دوسرے علاقوں میں بھی آپ گئے ہوں گے, کیا کمپیریزن بن رہا ہے؟ اسد, میں جانکاری یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے, آپ ووٹرز کی لائن دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہے یہ پولنگ اسٹیشن جو ہے اسے کرنل ڈیوڈ مارکس اسکول میں یہ پولنگ اسٹیشن موجود ہے, اور اسے PS 217 بھی کہا جاتا ہے اس اسکول کو. تو یہاں 6 بجے آج صبح پولنگ شروع ہوئی, اوپن ہوئی, اور اس کے بعد میں نے جیسے جانکاری اندر سے نکالی تب تک 138 لوگوں نے یہاں پہ اپنے ووٹس ڈالے تھے. لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی قطار ہے, تو اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے ظاہر ہے کہ ووٹس یہاں پر ڈالے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ کونی آئلینڈ ایونیو کا وہ علاقہ ہے جسے لٹل پاکستان کہا جاتا ہے. 2018 میں اس علاقے کے ایک اسٹریٹ کارنر کو قائد اعظم جناح صاحب کا نام دیا گیا تھا, کو نیمنگ ہوا تھا. تو اتنی سگنیفیکنس ہے, اتنی زیادہ یہاں پر پاپولیشن ہے پاکستانی امریکنز کی کہ یہاں پر آپ وہ اس کا ایک صورتحال یہاں پہ بھی نظر آتا ہے. کئی سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو میں نے کمیونٹی کے کچھ لوگوں سے بات کی کہ اس الیکشن میں ان کے لیے کیا ایشوز معنی رکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ٹرن آؤٹ تو بہت زیادہ ہوا ہے. میں نے بھی ارلی ووٹنگ کی ہے اور جتنے میرے ساتھی تھے انہوں نے بھی کی ہے. تو میرے خیال میں یہ سوئنگ ووٹنگ ہوگی, ارلی ووٹنگ جو انہوں نے کی ہے. آئی تھنک اٹس گڈ کہ انہوں نے کی ہے, پر ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی ہے کہ یہ مس یوز بھی ہو سکتی ہے ارلی ووٹنگ. I voted early. And I felt that it was very. میں نے ارلی ووٹنگ میں ووٹ ڈالا اور مجھے وہ بہت محفوظ لگا. میری عمر کے لوگوں کو لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی. میں اندر گئی اور وہاں ہر کوئی بہت مددگار تھا. امریکہ ان اصولوں پر بنا تھا جو یہاں مذہبی اور سیاسی آزادیوں کے لیے آنے والوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے, اور اس کا دوبارہ حصول انتہائی ضروری ہے. ہمارے لیے تو یہی فیکٹر معنی رکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایشین لوگوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, کون سی پارٹی ایشین لوگوں کو پسند کرتی ہے. ہم تو کاسٹ کریں گے ووٹ تو اپنی قوم کے ساتھ, اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس کو ووٹ دیں گے جو ہمارے فائدے میں ہوگا. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس اسکول میں جو کرنل ڈیوڈ مارکس اسکول ہے, اس میں بروکلن کے 60 ڈسٹرکٹس کے لوگ آج ووٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر نیو یارک شہر کی بات کی جائے تو ارلی ووٹنگ, چاہے وہ میل ان بیلٹس ہو یا چاہے وہ ان پرسن ارلی ووٹنگ ہو, تو 11 لاکھ لوگوں نے ووٹ کیا ہے. تقریباً 50 لاکھ ووٹرز, رجسٹرڈ ووٹرز نیو یارک سٹی میں موجود ہے. نیو یارک اسٹیٹ کی بات کی جائے تو 29 الیکٹورل کالج ووٹس یہ نیو یارک اسٹیٹ دے گا, کسی بھی جو بھی جیتے گا اس کو ملیں گے. اور نیو یارک اسٹیٹ کی بات کی جائے تو 33 لاکھ لوگوں نے قریب ووٹ ڈال چکے ہیں ارلی ووٹنگ کے ذریعے, اور آج اس میں بھاری اضافہ ہونے کی امید سب کو ہے. بہت شکریہ انشمن, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نیو یارک سے. اور کونی آئلینڈ جو کہ لٹل پاکستان بھی کہلاتا ہے, ہماری الیکشن پہ اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا. الیکشن نائٹ پہ بھی آج وائس آف امریکہ جو ہے وہ آپ کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن لے کے آئے گا. 2 گھنٹے کی الیکشن نائٹ پہ آپ سے ریزلٹس بھی ڈسکس ہوں گے, اور جو بھی سلسلہ تب تک بنے گا, جن ریاستوں کے ریزلٹس آ چکے ہوں گے وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہوں گے. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور اپنے اس پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, facebook.com/VOA Urdu. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے. The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360.